Hello students, I hope you all are fine. Students, today we are going to start Unit 6, Haloalkane and Haloarine. Students, this is unit of the organic chemistry. So today, on demand of the students, we are going to start the organic chemistry. Today we will do introduction of this unit only, Haloalkane and Haloarine. Students, haloalkane, what do you mean by haloalkanes? Haloalkanes, these are derivatives. These are derivatives of alkanes. These are derivative of the alkane. So first of all, we should know about the alkanes. Alkanes, they have formula CnH2n plus 2. They have formula CnH2n plus 2. And here, single bond exists between carbon and carbon. Single bond present. Okay. If one hydrogen, like we can say in case of alkane, जैसे हमारा CH4, if n is number of carbon, if carbon 1, so C1 H, 2 into 1 2 plus 2, so CH4. If carbon is 2, then C2H6. If carbons are 3, then C3H8. These are the alkanes. These are alkanes. Okay, ये क्या है हमारे alkanes हैं. If one or more hydrogen replaced by the halogen. Halogen means group number halogens. Halogens are group number 17 elements. Group number 17 elements are known as the halogens. Okay, like fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, these are the halogens. When one or more hydrogen, for example, this is alkane CH4. You know very well, carbon is tetracovalent. It can form 4 bonds. If one, this is CH4, methane. If one or more hydrogen, here first of all, I am replacing one hydrogen by chlorine. So this is haloalkane. Here halo is chloro. Okay, so it is chloro. Alkane. So one carbon is here. For one carbon, we will use meth. So it is chloromethane. Okay, students. So haloalkane, these are the derivatives of the alkane. First of all, we should know what is alkane. Alkanes are those which have formula CnH2n plus 2. एन क्या है यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर कार्बन एक है तो ये फॉर्मूला, अगर हम एक कार्बन है तो एन की वैल्यू एक पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा CH4 क्या है मीथेन. अगर दो हम पुट करेंगे एन की वैल्यू सो C2H6, ये क्या है इथेन. और अगर हम एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमारा प्रोपेन. ओके, तो इस वेव से हम सीरीज चलेंगे. और जब यहाँ एल्केन से हम एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा हैलोएल्केन. ओके, you can see with examples. So here alkanes have general formula CnH2n plus 2. If one or more hydrogen are replaced by the hydrogen of carbon, then they form haloalkane. मान लिया हम यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा
CnH2n, 1 हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा प्लस 1, ओके। और उस 1 हाइड्रोजन की जगह हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, हेलोजन। सो हेलो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 X। X क्या है यहाँ पर, X क्या है हमारा, हेलोजेंस। X क्या है, हेलोजेंस। हेलोजेंस में भी फ्लोरीन, में भी क्लोरीन, में भी ब्रोमीन और आयोडीन। Okay students, it's like if our alkane is CH4, then we can write CH3 because one hydrogen here we are going to replace it by halogen, like if we react it with Cl2, okay, any halogen, I am reacting with the chlorine। तो यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिज्म कैसे होगा वो सारा आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है हमारा, ये हेलोजन, ओके, क्लोरीन, और HCl निकल जाएगा। तो ये क्या बना हमारा, हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो एल्केन क्या होते हैं, जब 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसके, एल्केन के, किससे, बाय हेलोजन, देन दे फॉर्म हेलो एल्केन। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर इथेन है, तो यहाँ हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे C2H, एक रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया H5, और यहाँ पर क्या दिएगा, किसने रिप्लेस किया है, हेलोजन ने, सो C2H5X। सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द हेलो एल्केन्स? These are derivative of alkane because we are deriving the haloalkane from alkanes, and haloalkane can be formed by replacement of hydrogen, of alkane by halogen। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किससे, हेलोजन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। जरूरी नहीं कि हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। मान लो हमारे पास है मीथेन है हमारे पास, इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकती हूँ CH4, ओके। पहले मैंने एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन है, ओके, ये पहले मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन से। अब मैं एक को और भी कर देती हूँ, यहाँ से कर देंगे, ओके। यहाँ तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था, अब इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, एंड all 4 hydrogen we can also replace, okay। So this is halo 1 carbon, methane। This is 1 2 for 2 dihaloomethane, here 1 2 3, so trihalomethane, ओके। और कॉमनली हम इनको क्या भी बोलते हैं, हेलोफॉर्म। जैसे हमारे ये क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, एक्स की जगह अगर हम क्लोरीन लगाते हैं तो फ्लोरोफॉर्म, ओके। लाइक अगर हमारे पास CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, CHI3 है तो दिस इज आयोडोफॉर्म, ओके। सो इफ आई एम हैविंग एक्स, सो यहाँ पर मैं कॉमनली क्या बोल सकती हूँ, हेलो। एंड दिस इज टेट्रा 4 हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन, only 1 carbon, so it is methane,
इट इज मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। हेलो एल्केन एल्केन के ही डेरिवेटिव होते हैं, एल्केन के ही डेरिवेटिव होते हैं। इनको हम डिराइव कहाँ से करते हैं? एल्केन से। कैसे डिराइव करेंगे? जब हम वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे? हेलोजन से, तो हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CnH2n+1x। दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ आपको पता है कि भी बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पर क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H6, C6H6। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिज 1 2 3 4 5 6 कार्बन, वन कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन क्या होती है? टेट्रा कोवालेंट होती है, 4 कोवालेंट बॉन्ड बना सकती है। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इसके साथ, एक डबल बॉन्ड है। बेंजीन में क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड ही हुए। अब एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही ये कार्बन 1 2 3 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन। सो सभी कार्बन्स पर एक एक क्या है? हाइड्रोजन। अब अगर मान लो मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे? हेलोजन से। हेलोजन मान लो मैंने किससे किया है? क्लोरीन से। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हेलो, हेलो ग्रुप मैंने यहाँ पर क्या लिया है? क्लोरीन। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। ये क्या है हमारी? बेंजीन। So derivative of the benzene, derivative of arene group are known as the haloarene. Okay students. Now classification. Classification of haloalkane. Haloalkane. क्लासीफाई हम स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासीफाई ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजेंस। ओके, मान लो हमने ये हमारा था एल्केन, ये हमारा C2H6 एल्केन है, और क्या है हमारा? इथेन। 2 कार्बन है तो क्या हो गया? इथेन। अगर यहाँ पर हम केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, C2H5। केवल एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, इसकी जगह मान लिया हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। सो ओनली 1 हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो। 4 1 वी आर यूजिंग वर्ड मोनो, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 हाइड्रोजन को भी, एक्चुअली इथेन का स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ये दिस, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, और फिर हमने टेट्रा कोवैलेंसी को, 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो, एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर सकती हूँ। अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो C2H4Cl2, जैसे CHHCCl ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? डाई हेलोजन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि 2 हेलोजन है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी है कि
यहाँ पर ये दोनों ही हेलोजन मैं सेम कार्बन से रिप्लेस करूँ। ओके, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मान लो हाइड्रोजन को तो मैंने दो को ही रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को तो दो को ही रिप्लेस करना है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो मैंने रिप्लेस किया इस कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन मैंने कहाँ से रिप्लेस किया, इस अदर कार्बन से। अगर हमारे हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हैं, कहाँ हैं, एडजेसेंट कार्बन पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ओके, तो यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम दोनों ही हेलोजन सेम कार्बन पर अटैच करें या फिर डिफरेंट कार्बन्स पर। तो अगर दोनों ही हमारे किस पे हैं, सेम पर, तो ये है जेमिनल डाइहैलाइड, और दोनों अगर एडजेसेंट कार्बन्स पर अटैच हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ओके, हम तीन कार्बन्स को भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने किया CH CCl, इन दिस वे CCl, हम तीन हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, सो जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हम मैक्सिमम हाइड्रोजन्स, जितनी पॉसिबिलिटी वहाँ पर बनती है उतने हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, हेलोजन से, और हमें क्या मिलेंगे फिर, हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, on basis of hybridization. Students, one thing you should know that if there are single bonds between carbon and carbon, then hybridization of carbon will be sp3। अगर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं अदर कार्बन से या फिर अदर एलिमेंट्स से, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड्स बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, डबल बॉन्ड्स, तो अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, क्या होगी, sp2। और अगर बॉन्ड क्या है, ट्रिपल, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। इफ डबल बॉन्ड देन sp2, इफ होल सिंगल बॉन्ड देन हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो इसके बिहाफ पर हम हेलोजेंस को भी देखेंगे, हेलो एल्केन्स को भी हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ if halogen is attached to single bonded carbon, you can see CH3 CH2, this carbon, it is forming one bond with this carbon, one bond with this hydrogen, one bond because two hydrogen are here, so two bond with hydrogen and one with chlorine। So halogen is attached to this carbon, halogen किससे अटैच है, this carbon से, और इस कार्बन ने क्या बना रखे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अलाइलिक हेलो एल्केन भी क्या होते हैं, अलाइलिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये भी क्या होंगे, हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे,
क्या होंगे, sp3। अलाइलिक क्या होती है, जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, बट हेलोजन और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अटैच हो, किस पर हो, नेक्स्ट कार्बन पर। जैसे ये हमारी डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच है, सो दिस इज नोन एज अलाइलिक पोजीशन, दिस इज नोन एज अलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर हेलोजन तो किससे अटैच है, इस कार्बन से, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन से बना रखा है और दो बॉन्ड H2 है, तो दो बॉन्ड किससे बना रखे हैं, हाइड्रोजन से, और एक बॉन्ड किससे बना रखा है, हेलोजन से। तो यहाँ सारे इस कार्बन में तो सारे ही बॉन्ड कैसे बना रखे हैं, सिंगल। तो ये भी क्या है, sp3, ये भी क्या होगा, sp3। ओके, सो अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, एंड उससे नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच है, तो दिस इज नोन एज अलाइलिक हेलो एल्केन। ये पोजीशन हमारी अलाइलिक होती है। यहाँ पर ये ग्रुप चेंज हो सकता है, अगर अल्कोहलिक है तो अलाइलिक हो जाए, मीन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये पोजीशन क्या है आपकी, अलाइलिक पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज ऑल्सो अलाइलिक, दिस इज ऑल्सो अलाइलिक। यहाँ भी क्या है, ये कार्बन एंड ये कार्बन, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है, और हेलोजन अटैच्ड किससे है, इससे। तो ये भी हमारी क्या है, अलाइलिक पोजीशन है, ये भी क्या है, अलाइलिक पोजीशन। और यहाँ भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर इसकी पूछी जाए तो इनकी sp2 है, लेकिन क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन को, और हेलोजन ग्रुप तो किस पर अटैच है, इस कार्बन पर, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन मेनली हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके लिए sp3, और यहाँ इससे अटैच है तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देन बेंजाइलिक haloarine, also these benzylic haloalkane are also sp3 hybridized. Here sp3. What do you mean benzylic? If this is benzene and it is forming bond with carbon, CH2 group is there, क्या होगा, CH2 group, so this carbon is forming one bond with this carbon, two bond with hydrogen and one with other group। यहाँ पर हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो विद हेलोजन। तो ये जो पोजीशन है ना हमारी, दिस पोजीशन, दिस आगे CH2 का बॉन्ड किसी और से, तो ये होती है बेंजाइलिक, क्या होती है, बेंजाइलिक। तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक क्लोराइड। तो यहाँ भी ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन ने सारे ही बॉन्ड कैसे बना रखे हैं, सिंगल। तो ये भी हमारी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे कि जिस भी कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन हमारी सिंगली बॉन्डेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, sp3। विनाइलिक हेलोएल्केन, विनाइलिक मीन if halogen or any other group is attached to the doubly bonded carbon, तो यहाँ पर ये कार्बन है हमारी, डबली बॉन्डेड कार्बन है, मान लो मैंने वैलेंसी कंप्लीट की तो CH2 यहाँ पर 2 and 1 3, तो एक हाइड्रोजन। सो ये हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन मैंने क्या लिया है, क्लोरीन। ये किससे अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड। और अभी मैंने बताया अगर कार्बन ने कहीं डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ओके स्टूडेंट्स,
ऐसे ही अगर ये है हमारा, तो यहाँ भी ये जो कार्बन है इससे अटैच है हेलोजन, क्लोरीन इससे अटैच है, और ये क्या है डबली बॉन्डेड, तो ये भी क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या होगी हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हेलोजन अटैच है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से इन दिस वे, अगर इस टाइप से अटैच है तो यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है हमारी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन क्लासीफाई हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन ऑन बेसिस ऑफ द number of halogen. We can also classify on basis of hybridization, and one we can classify like primary, secondary, tertiary. Primary, this, if this is methane, again this is methane, if one hydrogen is replaced by halogen, then it is methyl chloride. If carbon is forming one bond, only one bond with other carbon, अगर कार्बन ने एक बॉन्ड किसी अदर कार्बन से बना रखा है और बॉन्ड किससे हैं हाइड्रोजन से, हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये किससे होगा हेलोजन से। ओके, तो अगर कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड कार्बन से बना रखा है तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे प्राइमरी, क्या कहेंगे प्राइमरी। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है हेलो एल्केन है, क्योंकि हमने हेलोजन से रिप्लेस कर रखा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया प्राइमरी हेलो एल्केन। और अगर कार्बन ने 2 मोर बॉन्ड्स बना रखे हैं किससे अदर कार्बन से, 2 बॉन्ड कार्बन से बना रखे हैं, तो अब अगर इस कार्बन ने 2 अदर कार्बन से बॉन्ड बना रखे हैं तो ये हमारी क्या है सेकेंडरी। तो यहाँ पर इस कार्बन से क्या अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है और इसी से हेलोजन अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ ऑल, बिकॉज हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो एक बॉन्ड तो हेलोजन से होगा ही, सो रिमेनिंग जो 3 बॉन्ड्स हैं वो सारे ही किससे बना रखे हैं कार्बन से, अल्काइल ग्रुप से। ओके, कार्बन से बना रखे हैं, तो ये कार्बन अब क्या है हमारी टर्सरी, और इसी कार्बन से हेलोजन अटैच है तो ये क्या हो गया टर्सरी हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया टर्सरी हेलो एल्केन। इसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, मिथाइल हेलो एल्केन को, मिथाइल हेलो एल्केन को क्या भी बोल सकते हैं 0 डिग्री। अगर कार्बन ने केवल एक बॉन्ड बना रखा अदर अल्काइल ग्रुप से या अदर कार्बन से तो प्राइमरी, और 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 बना रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा टर्सरी। और हाइब्रिडाइजेशन सभी की क्या होगी, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड तो सिंगल ही बना रखे हैं सभी केसेस में, तो यहाँ भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp3 था, ये भी क्या है sp3, और ये sp3, ये भी क्या है आपका sp3, क्योंकि अगर कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बनाती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। ओके स्टूडेंट्स, सो कल हम डिस्कस करेंगे ये कार्बन एंड हेलोजन जो CH बॉन्ड है, क्या नेचर है इस बॉन्ड का, कैसे ये रिएक्ट करेंगे। ओके, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल टर्म्स are clear to you. So if you like the video, please like, share the video and subscribe my channel. So thank you, have a nice day.